उनको यहाँ बैठने में क्या दिक्कत है? फर्स्ट नहीं होगा ना, इधर मुड़ी कैसे हुई? वहाँ वहाँ मुड़ी घुमाओगे, नहीं तो उधर सीधे रहेगा ना। यहाँ मुड़ी ऐसे कर लो। Here, wave optics, बोलना नहीं। अरे Wave optics, you know that it is a branch of physics which deals with the wave nature of light, is known as the wave optics. We have to study in the wave optics what is the wave front. You know that any disturbance which travels in a medium that is known as the wave, and when the travels moves in a medium, it forms the crest and trough. And if all the crest particles are joined, then that is known as the wave front. All the crest particles, here you see, if a stone is dropped here in still water, then the ripples are formed, and ripples, some are at the trough and some are at the crest. तो कुछ पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पे होते हैं, उसे क्रेस्ट कहते हैं। नीचे होते हैं डाउनवर्ड मिनिमम, दैट इज द ट्रफ। ऑल द पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, the locus of these particles is known as the wave front. Try to understand what is the wave front. Wave front. All particles, तो लिख सकते हैं कंटिन्यूअस लोकस, लिखो कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल particles which are vibrating in the same phase. Continuous locus of all particles which are vibrating in the same phase is known as continuous locus of all particles which are vibrating in the same phase is known as continuous locus of all particles which are vibrating in the same phase is known as the wave front. Continuous locus of all particles which are vibrating in the same phase is known as the wave front. उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान में रखना, इसे ही वेव फ्रंट कहेंगे। कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग। तो वेव फ्रंट इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। स्फेरिकल वेव फ्रंट, फर्स्ट वी विल स्टडी द स्फेरिकल वेव फ्रंट। Spherical wave front. Spherical wave front. The wave front produced due to the point source is known as the spherical wave front. Note down, wave front produced due to the point source is known as the spherical wave front. Wave front produced due to the point source is known as the spherical wave front. Here you see, suppose here is point source, then here the spherical wave fronts are here, and this is the ray which is perpendicular. This is the ray of light. ध्यान रखना, ray of light is always perpendicular to the wave front. Here this is the ray of light. Wave front produced due to the point source. If a wave front अगर स्पेस में खाली जगह में अगर एक बल्ब जल रहा हो तो देखोगे कि चारों तरफ एकदम डेंस लाइट का एक ग्रुप दिखेगा। तो जो फुटबॉल जैसा से मैंने स्फेरिकल फॉर्म में दिखता है, वो भी एक तरह का वेव फ्रंट होता है। एक कमरे में नहीं दिख सकता, इसलिए कि यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ का रिफ्लेक्शन इस दीवार से, इसका रिफ्लेक्शन इस दीवार से, तो लगातार रिफ्लेक्ट होकर के लाइट इसी कमरे में रह जाती, पाई जाती। लेकिन अगर स्पेस में एक बल्ब जला दिया जाए तो वहाँ रिफ्लेक्शन तो होता नहीं। रिजल्ट क्या आता है कि वहाँ की लाइट जब चारों तरफ फैलती है पॉइंट सोर्स से, तो वो एक
स्फेरिकल फॉर्म में हमें दिखता वेव फ्रंट की तरह है। यहाँ पे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि हाउ द लाइट ट्रेवल्स इन स्पेस। एट फर्स्ट वी हैव टू सी स्फेरिकल वेव फ्रंट। वेव फ्रंट प्रोड्यूस ड्यू टू द पॉइंट सोर्स इज नोन एज द स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब देखना स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। सेकेंड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ध्यान रखना सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। लिखेंगे वेव फ्रंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द linear source or slit. Wave front produced due to the linear source or slit, SLIT, is known as the cylindrical wave front. Wave front produced due to the linear source or slit is known as the cylindrical wave front. अब जो ट्यूबलाइट है ना, ट्यूबलाइट को अगर स्पेस में से खड़ा कर दो तो चारों तरफ एक लाइट ऐसे जाएगी। स्लिट, SLIT, लीनियर सोर्स और स्लिट। स्लिट का मतलब किसी बीच में कट मार दो और लाइट चारों तरफ जा सके, तो लीनियर सोर्स और स्लिट। इट इज नोन एज द सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। देखना सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे होता है। लीनियर सोर्स हमारे पास है, लाइट पासिंग इन ऑल डायरेक्शन। हियर इफ वी ज्वाइन दिस here, ये देख लेना, ये हमारे पास ये क्या है, एरे ऑफ लाइट, एरे ऑफ लाइट। ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, हर डायरेक्शन में लाइट जाती है, हर डायरेक्शन में। कहने का मतलब दिस इज नोन एज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। cylindrical wave front। This is cylindrical wave front. What will be? It is cylindrical plane wave front. After this we will study plane wave front। Plane wave front you have to see। Plane wave front। What is the plane wave front you have to see? It is a part of spherical or cylindrical wave front which lies at a large distance from the source is known as the plane wave front. Try to understand what is the plane wave front. Draw the diagram like this. Here it is the plane wave front. Try to understand, this is plane wave front। Plane wave front। So there are three types of the wave front। Here this is the ray is always perpendicular to the wave front। ध्यान रखना, plane wave front की definition नोट करना। It is the part of cylindrical or spherical wave front। It is the part of cylindrical or spherical wave front which lies at a large distance, LIES, which lies at a large distance from the source। जब सोर्स से बहुत दूर हो जाता है सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक पार्ट, तो दैट बिहेव्स लाइक ए प्लेन वेव फ्रंट। जैसे देखते हो, अगर हम
सोर्स की बात करें स्फेरिकल, तो देखो शुरू में ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे, बाद में होते होते प्लेन हो जाएगा ना। अर्थ हमारी स्फीयर है लेकिन हमें प्लेन दिखती क्योंकि सेंटर से बहुत दूर हो जाता है। तो ए पार्ट ऑफ सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट which lie at a large distance from the source is known as the plane wave front. Is it clear? So there are three types of the wave front. अब देखना, ये हमारे पास है प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल सब हो गया। नेचर ऑफ द वेव फ्रंट प्रोड्यूस, मतलब कह सकते हैं कि प्रिज्म के नेचर ऑफ द प्रिज्म फॉर द वेव फ्रंट, नेचर ऑफ प्रिज्म फॉर वेव फ्रंट, नेचर ऑफ प्रिज्म। हाँ, तो नेचर ऑफ प्रिज्म के लिए जरा देखना, प्रिज्म की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर प्लेन वेव फ्रंट गिरता है तो ये प्लेन ही बाहर निकल में आता है। देखना, अगर हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट ऐसे गिरे, ऐसे प्लेन वेव फ्रंट, तो होता क्या है, यहां से ए बी सी है, देखना अगर पीक्यू वेव फ्रंट अगर गिरता है, पीक्यू या पीबी, जैसे पीबी वेव फ्रंट गिरता है और पी डैश सी अगर बाहर आ जाए, ये वेव फ्रंट क्लियर करना। अगर किसी प्रिज्म के एक सरफेस पर प्लेन वेव फ्रंट गिरता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन द वेव फ्रंट इज रिमेन द प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट अगर इस पर गिरे प्रिज्म पर, तो प्लेन वेव फ्रंट ही रिफ्रैक्ट होकर बाहर आता है। रीजन क्या है, यहाँ से गिरा तो यहाँ लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वाई, बिकॉज दिस इज द रेयर मीडियम। यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन मीडियम मिलेगा और फिर रेयर मीडियम, तो ये ऊपर की डिस्टेंस तो अधिक होगी, नीचे क्या है, नीचे हमारे पास है डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो डेंसर मीडियम का क्या होगा, डेंसर मीडियम में डिस्टेंस कम ट्रेवल होगी। तो अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम में अगर हम एक वेव फ्रंट को जो रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल रहा है उसको अगर कैलकुलेट करते हैं, वी फाइंड दैट द prism refracts the same plane wave front, and after refraction it is remain the plane wave front. So you can note down, when a plane wave front incident on a prism, when a plane wave front incident on a prism, when a plane wave, कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि तुम समझने कभी नहीं आता। When a plane wave front incident on a prism, then after refraction, the nature of the wave front remain the plane wave front. Nature of the wave front. When a plane wave front incident on a prism, then after refraction the plane wave front remain the plane wave front. After refraction the plane wave front remain the plane wave front. रिफ्रैक्शन के बाद वह प्लेन ही रह जाता। लेकिन ये ध्यान में रखना, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस देखना जरा, कॉन्वेक्स लेंस ये हमारे पास है, इफ यू इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, ये देखो अच्छे है, अगर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो यहाँ पर तो क्या होगा,
सपोज ए बी सी एंड ए डी सी। अब ये देखो यहाँ पे देखो, here it is A dash। ध्यान में रखना कि वैल्यू जो हमारे पास हो जाती है ये देखना थोड़ा, A dash B dash is when a plane wave front incident on a convex lens, when plane wave front incident on a convex lens, then the refracted wave front becomes spherical wave front, refracted wave front become spherical wave front. When a plane wave front incident on a convex lens, then the refracted wave front become spherical. A refracted wave front become spherical. Here you see, यहाँ पे लॉन्गर डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर टाइम में लॉन्गर डिस्टेंस होगा, फिर उससे थोड़ा सा कम, फिर जैसे मीडियम बढ़ता चला जा रहा है ना, तो ये फिर फाइनली ये जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पे मिलाएंगे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो हमें जो नेचर मिलता है वेव फ्रंट का वो स्फेरिकल वेव फ्रंट मिल जाता है इस टाइप का। और इसी तरह से कॉनकेव मिरर, अब देखना कॉनकेव मिरर में जब ये लाइट ऐसे गिरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे मिलती है, ये जो होता है at any instant of time it is also spherical wave front। ये ध्यान में रखो, ये spherical wave front बनता है, ध्यान में रखो। इसको हम A डैश B डैश, और यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट अगर ये भी गिर रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम spherical। and plane wave front incident on a concave mirror, clear, then the reflected wave front behave as a spherical wave front, reflected wave front behave as a कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट लिख सकते हो, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो 1 मार्क में कभी कभी पूछा जाता है कि वेव फ्रंट का नेचर लेंस से जाने पर क्या होगा, मिरर से और प्रिज्म से, तो ये ध्यान रखना। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन्स प्रिंसिपल, हाइगेन्स प्रिंसिपल। वेव थियरी को हाइगेन्स प्रिंसिपल ने दिया, वेव थियरी।
Huygens principle. According to Huygens, each point on a note down, some postulates are given. You can note down, some postulates are given by the Huygens. These postulates are known as the Huygens principle. ये बहुत कुछ करके नहीं दिखाए थे, एक पोस्टुलेट अज्यूम किए थे, उन्होंने बताया, और चूंकि वो उनके थियरी से मैच करता था प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया. दिस पोस्टुलेट्स आर नोन एज द हाइगेंस प्रिंसिपल. प्रैक्टिकली करके बहुत इन्होंने नहीं दिखा पाया, लेकिन यह है कि यंग्स ने प्रूव किया. कुछ चीजें इतना ज्यादा प्रैक्टिकल यूज में रहती हैं कि उसे कोई प्रूव नहीं कर पाता, लेकिन उसके एग्जिस्टेंस को नकार नहीं सकते. जैसे गॉड ही है, उसको आज तक कोई खड़ा नहीं कर पाया कि यही है, लेकिन उसके एग्जिस्टेंस को खत्म भी नहीं कर सकते. वही हालत किसने बताया? हाइगेंस ने कुछ पोस्टुलेट अपना बताया और उस पोस्टुलेट को प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया, लेकिन जब थियरी उसको डेली लाइफ में देखा गया तो ऐसा होता. जैसे फर्स्ट, each point on a wave front, note down, each point on a wave front acts as a fresh source for the new disturbance. On a wave front acts as a fresh source for the new disturbance. Each point on a wave front acts as a fresh source for new disturbance. The new disturbance are known as secondary waves or wavelets. The new disturbances are known as the secondary waves or wavelets. Secondary waves or wavelets. ये फर्स्ट पॉइंट, उनका फर्स्ट assumption था, each point on the wave front acts as a fresh source for the new disturbance. उसने बताया कि इसके तमाम पॉइंट सोर्स होंगे. acts as a fresh source for the new. आगे जब बढ़ेगा यही सोर्स ऑफ लाइट, फिर आगे बढ़ेगा, फिर स्पीड ऑफ लाइट से. सेकंड पॉइंट, नोट डाउन सेकंड पॉइंट, secondary wavelets travel in all direction with speed of light. Second point, secondary wavelets travel in all direction with speed of light. Secondary wavelets travel in all direction with speed of light. Is it clear? Speed of light. Secondary waves travel in all direction with speed of light. Third point. Second, the wave front, the note down, second, new wave front, third one को, new wave front can be found, the new wave front can be found by tracing a forward envelope or tangent. The new wave front can be found by tracing the forward envelope or tangent at any instant. At any instant, the new wave front can be found by tracing the forward envelope or tangent at any instant of time. At any instant of time. तो ये हमारा हाइगेंस का प्रिंसिपल है कि ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, अगर हम एक सोर्स है, सोर्स से लाइट कैसे दूर तक बढ़ती चली जाती है, हर पॉइंट पर वेव फ्रंट मिलेगा, वेव फ्रंट
पर जितने भी सोर्सेस हैं दे बिहेव एज ए सोर्स ऑफ लाइट एंड दे मूव इन ऑल डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट इस तरह से आगे बढ़ती चली जाती है कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है वेव नेचर में। ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स फॉर द न्यू डिस्टर्बेंस। New disturbance travel in all directions with the speed of lights, and if any tangent is drawn at any instant in the forward direction, then that tangent or envelope is known as the new wave front. इसको हम लोग कुछ हाइगेंस कंस्ट्रक्शन करके देखते हैं। जैसे अगर एक हमारे पास suppose a plane wave front is like this, there are some sources, each point on a wave front acts as a plus force for the new disturbance। अगर हम लाइट की स्पीड ऑफ लाइट से चलता है t समय में अगर एक स्फीयर ड्रा करें तो दिस इज इफ c taken as the center, यहां देखो इसको हाइगेंस कंस्ट्रक्शन कहते हैं। देखो ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, ए बी इज द प्राइमरी वेव फ्रंट। इफ ए टेंजेंट इज ड्रॉन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन a dash b dash, then a dash b dash will be the new wave front। try to understand। इसको हम हाइगेंस कंस्ट्रक्शन कहते हैं। हाइगेंस कंस्ट्रक्शन। Here AB, it is the primary wave front, A dash B dash, it is the secondary wave front। इसको न्यू वेव फ्रंट कहते हैं। अब यह अगले वेव फ्रंट के लिए प्राइमरी हो जाएगा, ध्यान रखना। It will become the primary। Each point on the wave front acts as a first source for the new disturbance। अब अगर हम फिर से बनाएं इसको तो ऐसे होगा। अब देखना ये डबल डैश बी डैश, दिस इज द, अब ये हमारे पास ये डबल डैश बी डबल डैश, ये हमारा न्यू वेव फ्रंट बनेगा। अब ये प्राइमरी बन जाएगा, ये सेकेंडरी। इस तरह से लाइट ट्रेवल करती है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्लियर करना हाइगेंस कंस्ट्रक्शन। इट इज हाइगेंस कंस्ट्रक्शन। ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स फॉर द न्यू डिस्टर्बेंस। तो इस तरह से अगर हमारे पास ऐसे है प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो इसमें अगर हम ले लें पॉइंट सोर्सेज, तो अगर स्फीयर ड्रा करें ऐसे ही, तो ये देखना ए बी हमारे पास है प्राइमरी वेव फ्रंट। तो ए डैश बी डैश फॉरवर्ड इन्वेलप या टेंजेंट, तो ए डैश बी डैश ये हमारा सेकेंडरी ए न्यू वेव फ्रंट हो गया। ये प्राइमरी वेव फ्रंट, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट ये हो गया। प्राइमरी वेव फ्रंट, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट, ध्यान रखना। दिस इज सेकेंडरी वेव फ्रंट। secondary wave front, this is the primary and this is the secondary wave front। now reflection on the basis of wave theory, this is very important topic। reflection on the basis of wave theory, इसको हाइगेंस कंस्ट्रक्शन कहते हैं। now हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए बी पर पॉइंट सोर्स लेते हैं। each point on a wave front acts as a fresh source for the new disturbance। suppose there are different points। अब हम t समय में देखते कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ct डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ct डिस्टेंस। क्लियर? ct डिस्टेंस विल बी ट्रेवल। तो हमारे पास ct डिस्टेंस
it will be traveled in time t। तो अगर हम एक स्फीयर ड्रा करें और t समय के बाद अगर हम एक टेंजेंट ड्रा करें तो ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ वी विल स्टडी डिस्कस द रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। Reflection on the basis of Huygens principle। Here, reflection on the basis of reflection on the basis of Huygens principle। Here, suppose a reflecting surface, suppose a reflecting surface, a plane wave front incident on it, ध्यान में रखो, plane wave front AB incident on it, 2 points on the wave front, suppose 2 points on the wave front, suppose A and B, and a ray is this is the ray is always perpendicular to the wave front। ध्यान रखना, AB is the wave front, here if normal is drawn, here this is I, so here this will be also I, if I have to understand, this is also I, ये I तो 90 minus I, 90 minus 90 minus I तो हो जाएगा I, तो ray makes angle I। Here according to Huygens principle, each point on a wave front acts as a fresh source for the new disturbance। A और B support 2 point source, तो यहाँ से जो लाइट चलेगी ये सीधे चलेगी सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और t समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सपोज BC, तो ये CT डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्लियर? एंड हियर इफ B इज टेक, और यहाँ से लाइट इधर नहीं जा सकती, रिफ्लेक्ट होगी नहीं, तो ये लाइट इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी, तो t समय में भी उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना CT, तो C इज टेकिंग, तो हमारे पास AC इज इक्वल टू व्हाट, AC इज इक्वल टू CT। B इज टेकिंग एट ए सेंटर एंड a tangent of radius CT is drawn, if an arc is drawn, तो आर्क पर अगर यहाँ से अगर हम एक टेंजेंट ड्रा करें, तो ये टेंजेंट जहाँ पे कट करेगा, दिस इज CD, दिस CD विल बी द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और इसको मिला लें BD, और ये वैल्यू हमारे पास, अब देख लेना इसको, ये R है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंगल R बनाता है। ध्यान क्लियर करना, ये R है, thus ABC and means AC, here AD is the incident wave front and CD is the reflected wave front। You can note down, suppose the diagram बना लो, suppose a wave front AB incident on a reflecting surface, suppose a plane wave front AB incident on a reflecting surface, plane wave front AB incident on a reflecting surface, if 2 point source A and B are taken on the plane wave front, if 2 point source A and B are taken on the plane wave front,
Then from the source A, secondary waves travel from A to C, with speed of light, travels from A to C with speed of light in time t. Therefore AC is equal to Ct. Therefore AC is equal to Ct. And secondary waves from B, reflected from the surface in time t, travel the same distance as AC, travel the same distance as AC, that is if B is taken as a center, and CT as the radius, and arc is drawn, and the tangent is drawn from C on this arc CD. A tangent is drawn on the arc from C. Then the secondary wave front CD, we get. Now in triangle ABC and DCB, angle A is equal to angle B, it is 90 degree.